जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी हमने भाई विजय से सुना। I want to thank God for whatever we've heard from Brother Vijay. बहुत ही प्रोत्साहनजनक वचन भाई ने बांटा है। We heard a very encouraging word from Brother. जैसे बहुत सारे हमारे बीच में भाई बहन जो टूट जाते हैं, There are so many brothers and sisters among us who are broken. परमेश्वर उन्हें टूटा रहने नहीं देगा। God doesn't let them remain broken. देखो बहुत बार हमारे मन में सवाल आता है कि प्रभु हमें क्यों तोड़ रहा है। Many times a question may arise in us that why is God breaking us? कई बार हमें समझ नहीं आता। Many times we won't देखो understand. मेन रीजन उसका ब्रदर्स एंड सिस्टर है, हमारे अंदर प्राइड है। The main reason, brothers and sisters, is that there is pride inside us. एक व्यक्ति के अंदर जब भी घमंड आता है, When pride enters a man, परमेश्वर से दूर चले जाता है, God goes far away from क्योंकि that उसका person. विरोधी परमेश्वर ही बन जाता है। Because God opposes the pride. इसलिए कई बार को परमेश्वर को हमें तोड़ना पड़ता है। That's why God needs to break us. पीटर ने कहा, जैसे भाई ने पढ़ के दिखाया, पीटर ने कहा मैं लॉर्ड तेरे लिए खड़े हो जाऊंगा। We heard that Peter said, God, Jesus, I will stand with you to the end. उसने उसका कान काट के भी दिखाया। And he even cut the लेकिन ear of the servant. लेकिन जब खुद के ऊपर परीक्षा आई, But when he himself was put to test, डिनाई कर दिया 3 बार। he denied Jesus 3 times. जब तक यीशु साथ में था उसके अंदर हाँ मैं कर पाऊंगा, When until the time Jesus was with him, he was very boastful. लेकिन जब परीक्षा आती है अकेले पैर आती है। But when we face a test, it comes to us when we are alone. यीशु से दूर था, Jesus was away from him, 3 बार डिनाई किया। and he denied Jesus 3 ब्रदर्स एंड times. सिस्टर, जैसे भाई ने कहा हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Like brother said, by ourselves we can do nothing. लेकिन जैसे भाई वो वचन पढ़ रहा था, आप अगर वो वचन ध्यान से देखोगे लूका अध्याय 22 में, If you look at the verse from Luke chapter 22, देखो यीशु मसीह ने कहा मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि तेरा विश्वास नहीं टूटेगा। Jesus said to Peter that I have prayed that your faith is not broken. और उसके बाद कहता है जब तू टूट जाएगा तो एक काम कर। And Jesus said that when you are broken, do one लूक thing. 22 Luke 22, उसका 22 वचन में देखो, chapter 32 verse 32. परंतु मैंने तेरे लिए विनती की तेरा विश्वास जाता न रहे, But I have prayed for you that your faith should not fail. पर जब तू फिरे And when you have returned, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। strengthen your brethren. तो परमेश्वर कहता है कि तू टूटने वाला है, Jesus told Peter that you're going to break, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहता अब तू आशा छोड़ दे। and that now you leave hope. Jesus didn't say that. परमेश्वर कहता है जब तू टूटेगा Jesus said that when you break, अब तू दूसरे को खड़ा कर पाएगा। then you'll be able to strengthen the तू others. ऐसे लोगों को तेरा टेस्टिमनी बोलेगा जो टूट रहा है। You'll be able to give your testimony to people who are about to be broken. ये जो भाई विजय ने आकर यहाँ पर बोल पाए, What Brother Vijay shared with us here today, ये इस कारण हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें तोड़ा है। because God broke Brother Vijay. अगर उसको नहीं तोड़ता तो वो आकर हमको मोटिवेट नहीं कर पाता। If Brother Vijay was not broken, then he would not be able to motivate us. इसी रीति से ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हमारा लाइफ ब्रेक होता है In the same way, when our life is broken, तकलीफ होगी, it will be trouble for us. कुछ भी चीज टूटता है तो दर्द जरूर होगा। When we are broken, definitely there's pain. पौलुस ने कहा प्रभु मुझसे दूर कर, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। Paul prayed that Lord remove this thorn away from me. 3 बार प्रार्थना किया, मतलब वो इतना प्रभु से कह रहा था प्रभु मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेके जा मुझसे। 3 times Paul prayed that God, I can't take it, just please take it away from me. लेकिन प्रभु ने कहा नहीं नहीं, बहुत सारा चीज तेरे को मैंने बता दिया है, अब तू फूलने का तेरे को पूरा चांस है, इसीलिए अभी से मैं तेरे पे ध्यान दे रहा हूँ। Because but God said that I have told you many things and that may make you proud, so that's why I'm keeping हो this सकता है thorn. अभी हम प्राउड नहीं है, Maybe right now we are not proud. आने वाले दिनों में हम प्राउड बन सकते हैं, Maybe in the coming days we may become proud. इसीलिए भी प्रभु हमें तोड़ता है। And that is why God breaks तो us. पौलुस बोलता है ऐसा है प्रभु तो ठीक है, And so Paul says, if that is the case, then that's प्राउड okay. बन के आपसे दूर जाने से बहुत उत्तम है कि आप मुझे और तोड़े। Rather than being proud, it is better that you break me even more. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे जीवन में टूटना हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण है, So brothers and sisters, breaking in our life is a reason of blessing. क्योंकि प्रभु तोड़कर देख के नहीं बैठता। So God doesn't just break us and just उधर watch हम us. पढ़ते हैं प्रभु अनुग्रह देता है। Here we read that God gives us 2 grace. कोरिन्थियन 12 में हम देखते हैं पौलुस को प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। In 2 Corinthians, God tells Paul that my grace is देखो sufficient for you. व्यवस्था विवरण में जब परमेश्वर कहता है कि इजराइलियों को उन्होंने 40 वर्ष जंगल में घुमाते रहा,
In Deuteronomy, we hear that when God was making the people of Israel wander in the उसके wilderness for 8वें 40 अध्याय में years, हम देख सकते हैं, in that chapter, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, Deuteronomy chapter 8, we उसका read, 4था वचन, उसका Verse दूसरा 8. वचन, उसका दूसरा वचन। Deuteronomy 8 तो verse 2, परमेश्वर वहां पे देखो उनसे क्या कहता है कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में जिसने तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you. परमेश्वर का खाली एक ही इच्छा है इतना परीक्षा और तकलीफ से गुजारने के लिए। God has only one desire that to make us go through all this trouble. क्या है वो डिजायर? And what is that desire? कि हमें नम्र बनाए। That we be humble. और दूसरा चीज And the second thing, वहां पर लिखा है, it says here, और तेरी परीक्षा कर कर ये जान ले and test you to know कि तेरे मन में क्या है what was in your heart, और कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। whether you would keep his commandments or सो not. ब्रदर्स एंड सिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर यहाँ पर दो चीज देख रहा है। So it's very important that God is looking for two things. हमें तोड़ता है, ये देखता है कि हम नम्र बन रहे हैं या नहीं, He breaks us so that he can see whether we are being humble or और not. दूसरा चीज है परमेश्वर देख रहा है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे क्या नहीं। And the second thing God sees is whether we're going to obey him or not. दो चीज कर सकते हैं हम लोग, We can do two things. एक प्रभु का थैंकफुल रह सकते हैं To be thankful to या God, तो ग्रम्बल कर सकते हैं। or we can be grumbling. तो हम अपने लाइफ को हम जांच सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर। So we can know our own lives, brothers and प्रभु sisters. हमारी सहायता करे May God help us कि ये तोड़ने के प्रोसेस में प्रभु का अनुग्रह जो हमें प्राप्त होता है, that in the process of breaking the grace that we receive from God, उसमें हम और यीशु मसीह जैसा बनते जाएं। in that we may become more and more like Jesus. So, when we are humble, God's grace is upon us. और जब हम नम्र बनते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। But normally, what happens? We are easily prone to be proud. लेकिन अधिकतर हमारे साथ यह होता है कि हम प्रलोभन में पड़ते हैं कि हम गर्व महसूस करें, And when we are proud, that begins our fall. और जहाँ पर हम गर्व महसूस करते हैं या घमंडी बनने लगते हैं, वहाँ पर हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। So we all have a desire to be humble, और हम सभी के अंदर वह इच्छा है कि हम नम्र बने, but naturally this pride just tries to come up. लेकिन स्वाभाविक रूप से आमतौर पर हमारे भीतर से यह जो गर्व या घमंड जो है वह निकलता है। Just as an example, I want to just say that in my place of work, और उदाहरण के लिए जहाँ पर जिस स्थान पर मैं काम करता था, say I was managing a plant, और उदाहरण के लिए जहाँ पर वो जो कारखाना जो फैक्ट्री थी वो प्लांट था मैं संभालता था, but I have found that there have been times when I have tried my best to do something but couldn't do it, couldn't solve the problem. और ऐसा समय भी मेरे जीवन में वहाँ पर आया था जहाँ पर मैं अपना सब कुछ लगाकर कोशिश करता कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा या अधिक बेहतर कर सकूं, लेकिन वहाँ पर वह बात नहीं बनती थी। Once after a shutdown, there was a small, tiny mistake, but it would be very critical any time. और वहाँ पर उस प्लांट में, उस फैक्ट्री में वहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ज़रूर थी जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। It could result in a leak or a fire any time. और वहाँ पर उस छोटी सी वो खराबी के कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता या बड़ी आग भी लग सकती थी। I tried my best with different people to resolve that. और मैंने अपने साथ के जो संगी लोग थे उन्हें लेकर उस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया। So always the pressure was upon me. What will happen? और मुझ पर यह भी दबाव बन रहा था कि आगे क्या होगा। One of our technicians solved that problem. और हमारे वहाँ पर जो मेरे समूह के जो लोग थे उसमें से एक जो इलेक्ट्रिशियन जो था, मैकेनिक, उसने one of our जो टेक्नीशियन जो था उसने उसका समाधान किया। I was so thankful for that. और मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी बना। Similarly, I have seen other situations और ऐसी एक दूसरी जो परिस्थिति थी वह थी where somebody junior to me went and solved a very impossible situation. और मुझसे जो निचले स्तर का जो व्यक्ति था या जो वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति था उसने बड़ी एक समस्या का समाधान किया। So I can tend to feel why being a Christian, why I couldn't solve it. और मैं ऐसे अपने आप के विषय में सोच रहा था कि एक मसीह होने के नाते क्यों मैं नहीं उसका समाधान कर पाया। But we are in the same team and those people are in my team and our problem is solved.
लेकिन वह जो व्यक्ति था वह मेरे ही समूह का था और हम एक ही समूह के होने के कारण उस व्यक्ति ने उसका समाधान किया। So God will use anybody to help us. तो परमेश्वर जो है किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा हमारे लिए, And so we can be thankful. ताकि हम धन्यवादी बन सकें। So brothers and sisters, it breaks our pride, you know, that we are not all. और भाइयों बहनों, यह हमारी सहायता करता है कि हमारा जो गर्व है, घमंड है, उसे तोड़ा जा सके। I've seen even at home, though I'm supposed to be a technical person, और घर परिवार में भी जैसे देखते हैं कि मैं जो है वह एक ऐसा व्यक्ति, एक तकनीकी सारी बातों को जानने या करने वाला बनूं, my wife does some good technical work better than me. लेकिन मेरी जो पत्नी है वह मुझसे भी ज़्यादा अधिक तकनीकी बातों में अधिक काम करती है। I can tend to feel, how can she do it? और मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह कैसे कर सकती है। I should be proud that I have such people. I have a good wife who can do such things. बजाय इसके कि मैं गर्वान्वित महसूस करूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है जो ऐसे सब तकनीकी बातों में काम कर सकती है। So brothers and sisters, we heard a very encouraging word. I was blessed by, you know, we may think that we have some gift in some particular area. और भाइयों बहनों, इस वचन से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ हूँ। हो सकता है किसी क्षेत्र में हमारे पास ऐसा कोई विशेष दान हो सकता है। Maybe it's cooking some food. We may be very good in cooking food, good tasty food. या हो सकता है कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाने या कुछ वस्तु बनाने के लिए आपके पास वह वैसा गुण हो सकता है। Maybe good in singing. या आप हो सकता है गीत गाने में ज़्यादा अच्छे माहिर हो, sharing. या बांटने में आप माहिर होंगे। Do we despise those who cannot do that? लेकिन क्या हम उन्हें तुच्छ समझते हैं जो वो सब कुछ नहीं कर पाते? Do we make fun of them? क्या हम उनका मजाक उड़ाते? That's all pride. वह सब कुछ घमंड है। God has to break us. अब परमेश्वर को चाहिए कि हमें तोड़े। As the word of God says, what have you received which you what have you got which you have not received? That word I am not getting. You all may be knowing the word. What have you? What does it say? Anybody knows? What have you? Yes. What have you? What do you have which you have not received? और वहाँ पर वह वचन इस प्रकार से बाइबल में एक जगह ऐसे कहता है कि तूने वह क्या है जो नहीं पाया है। And if you have received it, why do you boast? और यदि तूने पा लिया है तो क्यों उसके विषय में शिकायत करता है? As though it is your own. As though it is your own. कि जैसे कि वह तेरा ही है। Brothers and sisters, as Vijay was sharing about that incident in John chapter 21. और जैसे कि हम देखते हैं भाई और बहनों, भाई विजय ने अभी यूहन्ना अध्याय 21 से वह जो घटना को हमारे बीच में रखा उदाहरण के रूप में। If you look into your Bibles, हम सभी अपने बाइबल में देखते हैं। I'll try to do it fast to keep my time. So, I just, you know, Peter was one who lied thrice, no? और हम सभी देखते हैं कि पतरस वह व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह का इनकार 3 किया times he denied Jesus. और उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। But in John 21, 3 times he was totally honest. लेकिन हम देखते हैं यूहन्ना के अध्याय 21 में 3 बार वह ईमानदार साबित हुआ। How we know is very interesting actually. और कैसे यह हम जानते हैं, यह बहुत ही दिलचस्प की बात है। From verse 15 to 17, और उसका यूहन्ना 21 के 15 से लेकर 17 वचन तक Jesus asks Simon, do you love me? और वहां पर यीशु मसीह जो है पतरस से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है। In English it's only love. और ये अंग्रेजी भाषा में जो है वहां पर केवल प्रेम But जो in शब्द है, Greek has got different words for love. लेकिन जो ग्रीक भाषा है उसमें प्रेम के लिए अलग अलग शब्द हैं। So what Jesus said was, और यीशु मसीह ने वहां पर यह कहा, Peter, do you agape me? और वहां पर उससे पूछा कि पतरस क्या तुम मुझसे अगापे करते हो। What Peter said, no, Lord, you know that I feel you. और वहां पर पतरस जो है वह उत्तर देते हुए यीशु से कहता है कि मैं आपसे फीलियो करता हूँ। Both are love. दोनों ही प्रेम का रूप है। Jesus said, do you unconditionally love me? यीशु मसीह ने उससे कहा कि बिना किसी शर्त और सीमा के तू मुझसे क्या प्रेम करता है। Lord, I know, you know that I have an affectionate love for you. और वहां पर पतरस उससे कहता है कि नहीं, मैं आपसे सीमित रूप में प्रेम करता हूँ। Second time in verse 16 also, do you agape me? और वहां पर दूसरी बार जब यीशु मसीह वचन 16 में पूछते क्या तुम मुझसे अगापे वाला प्रेम करते हो। He's saying, asking second time, Lord, you know that I feel you.
और वहाँ पर पतरस जो है वह यीशु मसीह से कहता है कि आप प्रभु आप जानते हो कि मेरे पास मैं आपसे फिलियो वाला प्रेम करता He हूँ। didn't say that confidence, even everybody will leave you, but I will not leave you. He didn't say anything like that. No. और वहाँ पर पतरस यीशु मसीह से ऐसा नहीं कहता कि भले ही चाहे सब कोई आपको छोड़ दे मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। Last time Jesus says in verse 17, Simon, do you filio me? और वहाँ पर वचन 17 में जब यीशु मसीह पतरस से पूछते कि क्या तू फिलियो मुझसे करता है, Peter's asking, now even this affectionate love, Jesus is asking whether I have that. और वहाँ पर पतरस अचंभित होता है कि अब यीशु मसीह यह तक मुझसे पूछे कि क्या मैं उससे एक लगाव रखने वाला प्रेम भी करता हूँ। Lord, you know all things, you know that I filio you. और वहाँ पर पतरस प्रभु को उत्तर देते हुए कहते हैं प्रभु जी आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं आपसे फिलियो करता हूँ। This is the one who lied, speaking uttermost truth. और यहाँ पर देखते हैं कि यह व्यक्ति जिसने सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ा इनकार किया था वहाँ पर वह सबसे बड़ा सच बोलता है। Brothers and sisters, when we come to God, भाई और बहनों जब हम प्रभु के पास आते हैं unless we are truthful and honest, we will never be able to communicate with Him. और जब तक हम परमेश्वर के सामने आके सच्चे नहीं बनते हैं तब तक हम परमेश्वर से बात नहीं कर पाएंगे। Just the time we are honest, immediate communication, though we are in the worst state, और भले ही हम कितनी ही बुरी दर्दनाक दशा में क्यों ना हो, जैसे ही हम ईमानदार प्रभु के सम्मुख होते हैं वहाँ बातचीत शुरू होती है। connection to God is only honesty. और परमेश्वर के साथ जो हमारा संपर्क है वह केवल ईमानदार बने रहने पर May है। God help us. प्रभु हम सभी की सहायता करें। आज प्रभु हमें प्रभु की अनुमति दो कि हमें तोड़ने के लिए के बारे में सुना। Today we heard that allowing God to break us. परमेश्वर हमें किस तरह तोड़ते हैं? God breaks us in this way. My brothers and sisters, जब आप स्वर्ग में जाएंगे That brother and sister, when you go to heaven, वहाँ पर एक भी घमंडी व्यक्ति देख नहीं पाएंगे। you will not see even one person who is proud. वहाँ हर व्यक्ति नम्र रहेंगे And whoever is there in heaven is humble. और वहाँ पर परमेश्वर निवास स्थान बनाया है। And God is seated on the throne over there. और स्वर्ग में कोई घमंडी व्यक्ति का स्थान नहीं रहेगा। And there is no place for any proud person in heaven. Isaiah 57 verse 15 कोई पढ़े? Isaiah का किताब 57 verse 15। Isaiah 57 verse 15. Can someone please read? Isaiah 57 verse 15। यहाँ पर प्रभु की वचन में प्रोत्साहन करते परमेश्वर का निवास स्थान किधर है? स्वर्ग में है। Here God's word encourages us and says that where God dwells is in heaven. और वहाँ हर एक व्यक्ति जो रहेगा तो नम्रता के साथ रहेगा। And there whoever is there is a humble person. क्या परमेश्वर दो जगह पे रह सकता है यहाँ पर? Can God be in two places? एक स्वर्ग में रहेगा God is in heaven जहाँ नम्रता है, दीनता है, where there is humility. और वही परमेश्वर क्या और एक जगह पे रह सकता है? Can that same God also live in another place? 15 बी पार्ट में लिखा है कि मैं उन लोगों के साथ भी रहूंगा जो नम्र और दीन है। I will dwell with them who has a humble and contrite spirit. कल्पना करो आप धरती में सबसे नम्र व्यक्ति हो, Just imagine that if you are the most humble person on this आपके earth परिवार में सबसे नम्र बहन हो, and you are the most humble sister in your family, जो स्वर्ग में निवास करने वाला जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर आपके दिल में रहने के लिए निवास स्थान बनाएगा। the true and living God who dwells in heaven, He will make His dwelling place in your heart. जस्ट कल्पना करो यीशु मसीह इस दीवार के बाजू में है, Just imagine that Jesus is outside this wall. जस्ट इस दीवार के बाजू में यीशु मसीह खड़ा है Just next to this wall, Jesus is standing. और आपके पास हाथ पैर चल रहा है उसको मिलने के लिए, And you have hands and legs to move and go and meet लेकिन Jesus. सडनली आपका हाथ पैर बंद पड़ गया। And suddenly your hands and legs are not moving. पहले आप तंदुरुस्त थे उसको मिलने के लिए,
earlier you were healthy to be able to go and meet, सडनली आपका हाथ पैर टन पड़ गया, and suddenly your hands and legs have become numb, आप उसको मिल नहीं पाया। and you are not able to go and meet him. लेकिन ये बात यीशु मसीह को पता चला, And this thing Jesus came to know, अरे ये भाई ये बहन मुझे मिलना चाहता था, that this brother and sister wants to meet me, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण मेरे पास नहीं आ पाया। but because of his weakness he's not able to come and और meet ये me. बात यीशु मसीह को पता होने के बाद And after Jesus comes to know this thing, वो खुद इस कमरे के अंदर आ रहा है Jesus comes himself to this room और आपको मिलने के लिए। to meet you. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको क्यों कहना चाहता हूँ ये बात, Brothers and sisters, do you know why I want to say this? परमेश्वर घमंडी लोगों को दूर करता है, पहला पत्रस में लिखा गया है। In First Peter it says that God resists the proud. और साम्स में लिखा है एक वचन, And in Psalms it says, साम्स 34 वर्स 18, Psalms 34 verse 18, भजन संहिता 34 वर्स 18। Psalms 34 verse 18. सो यहाँ पर लिखा है कि वो टूटे मन वालों को समीप रहता है। Here it says that the Lord is near to those who have a broken heart. सो मैं इस वचन से हमेशा प्रोत्साहन पाता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ रहने का एक ही तरीका है। From this verse I'm encouraged in this way that there's only one way that God can be with me. जब वो कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में अलाउ करता है, That when He allows any situation in my या कोई life, भी कठिन व्यक्ति को मेरे जीवन में अनुमति देता है मुझे तोड़ने के लिए, when He allows any difficult person in my life to या कोई break भी me, आर्थिक परिस्थिति मेरे जीवन में अनुमति करता है मुझे तोड़ने के लिए, or when any financial situation comes in my life to break me, और मैं परमेश्वर को कहना चाहता हूँ, प्रभु अगर आपकी इच्छा में है आप मुझे तोड़ने के लिए हैं, and then I want to pray that God, if it is your will to break me, मुझे तोड़ ताकि मैं दीन बन सकूं, then Lord break me so that I can be made humble. क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों का करीब रहता है। Because God is near to the humble. और जो स्वर्ग में, जो जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में है, And the living God who is in heaven, वो ये परमेश्वर अगर धरती में अगर दीनता में रहते हो, and that same God will be with the humble people here on this earth. आप और मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनेंगे। Then you and I can be that dwelling place for God. जैसे कि भाई विजय ने पतरस का उदाहरण दिया था, Brother Vijay gave the example of Peter. तो यीशु मसीह पतरस के लिए जो प्रार्थना किया था, And the prayer that Jesus made for Peter, वो प्रार्थना ये था कि the prayer was this, that ऐसा नहीं कि तुम नहीं गिरेगा, it's not that you will not fall, तू गिरेगा, you will fall. मैं भी गिरूंगा। I will also fall. लेकिन जय भाई किरण ने भी उनको ऊंचा उठाया कि जब तुम जी उठने के बाद, वापस उठने के बाद, But then after you return, आपके संग भाई बहनों को क्या करना, that what should you do for your brothers? उनको स्थिर करना, You strengthen them, उनको उत्साहित करना। you encourage them. तो यीशु मसीह को पता था कि यीशु मसीह ने जो प्रार्थना कर रहा था वो 100% पूरी होगा उधर पर। Jesus knew that the prayer that Jesus was praying was going to be answered माय ब्रदर्स एंड 100%. सिस्टर्स, यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए जो प्रार्थना आज भी कर रहा है वो 100% पूरी होगा। And brothers and sisters, the prayer that Jesus is praying for me and you even now is going to be answered अगर वो 100%. पतरस के लिए प्रार्थना 100% फला है तो हमारे लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वो 100% फलेगा वो। If the prayer that Jesus prayed for Peter was answered, then the prayer that he's praying for us also will be answered. यीशु मसीह की प्रार्थना में यही है ताकि जब तू वापस उठेगा, The prayer is that when we return, जानते हैं बाइबल में जितने भी लोग हैं आज हमें आशीषित किया है वो सारे के सारे टूटे हुए लोग हैं। and all those people who are a blessing to us from the Bible are the people who have been broken, क्योंकि घमंडी लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। because there's no place here for the proud घमंडी लोगों people. के परमेश्वर के करीब आने का कोई मौका नहीं है। There is no chance for the proud people to come परमेश्वर near खुद God. उनको दूर करता है God himself will push them away, और नम्र लोगों को सपोर्ट करते हैं। and God upholds the humble. धन्यवाद कि परमेश्वर मेरे जो ने बहुत सारा अनुमति दिया है कि मुझे टूटने के लिए। I want to thank God that God has allowed me many times to be broken. कई बार आर्थिक परिस्थिति दिया, Many times it is through financial कई situations, कोई कठिन अविश्वासी को मेरे जीवन में भेजा, or some difficult unbeliever has he brought into my कोई life. बुरी बात को रखा मेरे ऊपर। Some difficult boss who was kept over me. आज पीछे मुड़कर मैं धन्यवाद कह सकता हूँ, इन सारे लोगों के कारण प्रभु ने मुझे तोड़ा। I can look back now and say that God has broken me through all those people. और प्रभु ने इन लोगों को मेरे लिए तैयार किया ताकि मैं प्रभु को धन्यवाद का दिल रख सकूं। And God has prepared those people for me so that I can be have a thankful heart to God.
I want to thank God for the encouraging word that we heard today. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रोत्साहन का वचन हमने सुना। All of us, we ought to know that everyone who's born is saturated with pride and selfishness. और हम सभी देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है वह पूरी रीति से घमंड और गर्व करने से ग्रसित होता है। We never see a child who is born with an open fist. और हम देखते हैं कि हम ऐसे कोई भी बच्चे को जन्म लेते हुए इस दशा में नहीं देखते कि उसके जो हाथ हैं वो हथेली खुली हो। Every child who's born is born with a clenched fist. और हम देखते हैं जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके हाथ की मुट्ठियाँ बंद होती है। Nobody teaches a child to grab a toy from another child. और कोई भी छोटे बच्चे को यह नहीं सीखा था कि वह जो खिलौना है दूसरे बच्चे से छीन ले। How did that child learn all these things? लेकिन वह छोटा बच्चा कैसे यह सारी बातें सीखता है? Because Satan has injected human race with pride and selfishness. क्योंकि शैतान जो है उसने इस मानव जाति को इस घमंड करने से और स्वार्थी बनने के इन बातों से ग्रसित किया है। And these two sins stick with all of us even after we are born again for a very very long time. और यह दोनों जो पाप है यह हमारे जीवन में काफ़ी लंबे समय तक नया जन्म पाने के बावजूद बने रहते हैं। Peter thought he was a wholehearted disciple. और पतरस ने यह सोचा कि वह पूरी रीति से समर्पित यीशु का शिष्य चेला है। And he was right. और वह सही था। He was wholehearted. वह पूरी रीति से हृदय समर्पित क्या हुआ था। But he didn't know that he had pride in him. लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके भीतर घमंड है। We too may think that we are wholehearted disciples. हम भी अपने विषय में यह सोचते हैं कि हम पूरी रीति से समर्पित हैं। And this message is not applicable to me. और हम ऐसा सोचते हैं कि यह जो संदेश है वह मुझ पर लागू नहीं होता। But I have discovered in my life there are still layers and layers of pride. लेकिन मैंने अपने जीवन में यह जाना और पाया है कि इस काफ़ी हद तक घमंड की जो परतें हैं वह अब भी मेरे जीवन में है। Only when the Lord turns up the heat, और जब तक प्रभु जो है वह गर्मी ना बढ़ाए, different situations, circumstances, अलग अलग परिस्थितियों में, then that pride comes up. और तब वह जो घमंड है वह बाहर निकलता And है। then the words come up. सॉरी, The words come और up. तब जो है शब्द बाहर आते हैं। Prideful, boastful words. और तब घमंड से और गर्व से भरे हुए शब्द बाहर आते And the हैं। Holy Spirit gently reminds us और तब पवित्र आत्मा हमें बहुत ही कोमल रूप से हमें स्मरण दिलाता है that is wrong. कि यह गलत है। It is in that moment, if we humble ourselves, we'll get grace. और यदि हम उस क्षण में अपने आप को नम्र बनाते हैं हम अनुग्रह प्राप्त करेंगे। But if we reject that gentle whisper of the Holy Spirit, लेकिन उस क्षण में यदि हम पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को यदि अस्वीकार करते हैं या ठुकराते हैं, then the Lord has to increase the temperature slow and slow. और तब प्रभु को जो है आवश्यकता होगी कि और ज़्यादा अधिक उस गर्मी का जो तापमान है वह बढ़ाए। Because the situations become more and more difficult. क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं वह और ज़्यादा अधिक हमारे लिए कठिन बनेगी। It is not because the Lord does not love us. यह इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, It is because He loves us. और यह इसलिए होगा क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता And है। I am convinced, as Brother Joseph also said, और मैं पूरी रीति से सहमत हूँ जो भाई जोसेफ ने कहा, when we get to heaven जब हम स्वर्ग में जाएंगे and when we look back, और तब हम पीछे मुड़कर देखेंगे every difficult situations that the Lord has allowed in our lives, हर एक वह कठिन परिस्थितियाँ जिसे प्रभु ने अनुमति दी हमारे जीवन में आने we के will लिए, kiss the feet of Jesus हम यीशु मसीह के पैरों का चुंबन लेंगे and we will say, thank you, Jesus, और हम कहेंगे धन्यवाद प्रभु जी। that allowed me to remain humble और इस बात ने मेरी सहायता की है कि मैं हमेशा नम्र बना रहूं, and that protected me from going to hell. और इसने मुझे बचाया है नरक जाने से। See, Judas was also part of the 12. और हम देखते हैं यहूदा जो था वह भी उन 12 शिष्यों में भागीदार था। Why didn't he repent? क्यों उसने मन नहीं फिराया? Because the Lord did not see that desire in him. क्योंकि प्रभु ने उसके भीतर वह इच्छा नहीं देखी। There is a line which the Lord has drawn around every one of us. और प्रभु ने हम सभी के चारों ओर एक सीमा रखी है। Beyond that certain line, if we keep on rejecting the Holy Spirit,
और उस सीमा के बाहर जाकर हम लगातार यदि पवित्र आत्मा की बातों को ठुकराते रहेंगे, then the Lord leaves us. तब प्रभु जो है वह हमें छोड़ देगा. The Lord is not a respecter of people. सॉरी. The Lord is not a respecter of people. और जो प्रभु है वह लोगों का रखवाला नहीं है, He loves everyone. कि वह सबसे प्रेम करता There है. is no favoritism with God. प्रभु के पास कोई भी विशेष नहीं होता. Only God can use people who are broken. और प्रभु केवल उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता है जो टूटे हुए हैं. After he broke the bread, he gave it to his disciples. और जब उसने रोटी तोड़ी उसके बाद उसने उसे शिष्यों को दी. Breaking is mandatory. और जो टूटना है वह अनिवार्य है, ज़रूरी है. Only then we can be a blessing. उसके बाद ही हम आशीषित हो सकते हैं. I want to show you one verse which says in Matthew chapter 10, और एक वचन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो मत्ती के अध्याय 10 में है it is in verse 33. और उसके वचन 33 में It says, "But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven." कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा. Jesus never said, "Those who commit adultery, I will deny before my Father in heaven." यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि जो कोई व्यभिचार करेगा उससे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा. But this he said that if you deny me before men, I will deny you before my Father. और यहाँ पर यीशु मसीह ने यह वचन कहा कि जो कोई मेरा इनकार करेगा मनुष्य के सामने, मैं पिता के सामने उसका इनकार करूंगा. And Peter had heard that, और पतरस ने वह सुना and he said, "I will never deny you." और पतरस ने वहाँ पर कहा मैं तुझे कभी इनकार नहीं He करूंगा. was bold and confident. वह बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा था. He was very hard. वह बहुत ही ज़्यादा कठोर था. That's why he had to be knocked very hard. और यही कारण था कि उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से नीचे लाना था. And may the Lord keep us soft. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम कोमल बने रहें. If we are soft, यदि हम कोमल बने रहेंगे, Then the नरम Lo- बने रहेंगे, then the Lord can work in our lives तब प्रभु जो है वो हमारे जीवन में कार्य कर सकेगा. and through our lives. और हमारे जीवन के द्वारा. But if we are hard, यदि हम कठोर बने रहेंगे then the Lord will have to use tough methods. और तब प्रभु को जो है चाहिए आवश्यकता होगी कि वो और ज़्यादा कठोर तरीकों का इस्तेमाल Let करें. us not judge others. आइए हम दूसरों का न्याय ना करें. This person is hard. यह व्यक्ति कठोर है, That person is proud. वह व्यक्ति घमंडी है, No, that's not my business. वह मेरा काम नहीं है. I need to judge myself. मुझे अपने स्वयं की जांच करनी है. Whenever the Lord shows even a speck of pride, I need to repent. और यदि एक तिनका भी प्रभु हमें हमारे विषय में घमंड करते हुए दिखाता है, हमें तुरंत मन फिराना है. Only then we will progress in our spiritual life. उसके बाद ही हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाएंगे. May the Lord help us. प्रभु हम सभी की सहायता करें. We heard that Jesus told Peter that Satan has chosen to sift you like wheat. और वहाँ पर हमने जैसे कि वचन में पढ़ते हुए सुना कि शैतान ने चुन लिया है कि वह चाहता है कि गेहूं के समान वह फटके. If you see the wheat kernel, यदि हम वो गेहूं की जो बालियां होती है यदि उसे देखते हैं, you will see that you cannot consume it as it comes from the plant. और आप उसे तब तक जैसे ही वह वहाँ खेतों से बालियों से तोड़ कर लाया जाता है आप उस गेहूं को खा नहीं सकते. That wheat has to be threshed. That wheat kernels have to be threshed. वह जो गेहूं का जो दाना होता है जो बालियों में लगा होता है उसे वहाँ से निकालकर उसे दाने को साफ करना ज़रूरी है. The farmer takes it to the threshing floor. और जो किसान जो होता है वह उस बालियों को जो घिसने का जो स्थान होता है वहाँ ले जाता है. And he uses the thresher to thresh it. और वहाँ पर वो घसने के उस स्थान में जाकर उन बालियों को वो घिसता है. And it's a very painful process. और वह वहाँ पर बहुत ही कठिन जो उसका जो क्रिया है वह होता है. But only when it's threshed will that the inner thing which we can consume will come out. और जब तक वह किसान उस बालियों को जब तक अच्छी रीति से ना घिसे तब तक उसमें से वह बालियों से गेहूं का दाना बाहर नहीं आता. And then the husk is separated from the wheat. और उसके बाद में हम उस गेहूं के दाने में से उसे बनाते हैं. So Jesus was telling Peter that you need to go through this process so that you know what is useful in you can come out. और वहाँ पर यीशु मसीह पतरस से यही बता रहे थे बात करते हुए कि जब तक तुम इस प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरते
जो तुम्हारे भीतर अच्छा है वह बाहर नहीं निकल पाएगा। So even though Satan uses difficult situations to, painful situations for us, he allows us to go through those things. God will cause it to work out for good. और भले ही शैतान हमें बहुत ही भारी कठिन परिस्थिति और दिक्कतों का सामना करने के लिए हमें उन बातों में या परिस्थितियों में लेकर चले जाता है, फिर भी प्रभु जो है वह उसमें से हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। Because he will take out what is the waste, the unused, the thing which is not useful, he removes it from us. क्योंकि प्रभु जो है वह हमारे भीतर से वह जो किसी काम का नहीं या उपयोग में आने वाली बात नहीं, वह उन सारे न काम में आने वाली बातों या गंदगियों को दूर कर देता है, ले लेता है। We see in Matthew chapter 3 and verse 12. और हम मत्ती के अध्याय 3 और वचन 12 में पढ़ते हैं, The Lord is saying, and his winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly clean his threshing floor, and he will gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. वचन 12, उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। So it is to remove the chaff that is in us that God allows us to go through the threshing floor. और हमारे भीतर का जो वह जो भूसी है उसे बाहर निकालने के लिए प्रभु चाहता है कि हम उस प्रक्रिया से होकर गुजरें। And the Lord means it for our good. और प्रभु का उद्देश्य उसके पीछे हमारी भलाई है। So we can take encouragement, brothers and sisters. तो इससे हम प्रोत्साहन ले सकते हैं भाई और बहनों। Each one of us may be going through, we know it in our own lives, individual situations, what we are going through. और हम में से हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में किसी न किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। And may we allow him to do that work in us. और हम प्रभु को अनुमति दें कि प्रभु उसका कार्य हमारे भीतर कर सके। And let's not judge, like we heard brother say, let's not judge others and be occupied judging others. This one is like that one is like this. What a waste of time and energy. और आए हम किसी का न्याय करने में अपना समय न व्यर्थ ऐसे ही गंवा दें और हम अपने आप को उसी से पूरी रीति से व्यस्त न कर लें कि यह व्यक्ति ऐसा है या वह व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि यह सब वह भूसी है। Because the Spirit of God is showing us how much of chaff is there in us. क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे भीतर हमें दिखाता है कि हमारे भीतर कितना भूसी भरा हुआ है। And he is going to burn up that chaff. और प्रभु जो है वह उस भूसी को जलाएगा। And he doesn't want us to burn up along with that chaff. अब प्रभु नहीं चाहता कि हमारी भूसी को जलाने के साथ में हम भी जल जाएं। And that is why he is doing this work in us. और इसीलिए प्रभु हमारे भीतर उसका कार्य कर रहा है। So though it's a painful process, और भले ही वह बहुत ही दयनीय और कठिन जो प्रक्रिया है, I pray that the Lord will open our eyes to be thankful for that process which we are going through now. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और हम धन्यवादी बने रह सके कि वह प्रक्रिया के लिए जो प्रभु जिसके द्वारा हमारे भीतर कार्य कर रहा है। Because like we heard, God is not going to dwell with the proud. क्योंकि वचन ऐसे कहता है कि प्रभु घमंडी के साथ में वास नहीं करता। And he wants to dwell with us. और प्रभु चाहता है हमारे भीतर हमारे साथ वास करने के लिए। So he is going to do this work in us to remove pride in our hearts. और प्रभु हमारे भीतर कार्य करेगा कि हमारे भीतर से वह घमंड को, गर्व को दूर करे। Then he will dwell. We'll be able to go to heaven, and God will. It says that he will tabernacle with the sons of men. और वहाँ पर हम देखेंगे कि तब हम जब स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है कि उसका वह जो भवन, जो मंदिर होगा, वहाँ पर हम उसके साथ वास करेंगे। He will dwell with us. वह हमारे भीतर वास करेगा। So what a great blessing that is. और वो कितनी बड़ी महान आशीष वह हमारे लिए होगी। And he wants us to dwell with him. That is why he is doing this work in us. He is interested in our lives. और प्रभु इतना दिलचस्पी हमारे लिए रखता है कि वह हमारे साथ हमारे भीतर वास करना चाहता है। So let's be thankful to God that he is allowing these painful things in our lives. तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वह इन सारी कठिन बातों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में अनुमति देता है। It's not without purpose that God is allowing these things. और यह कि बिना किसी उद्देश्य के नहीं कि प्रभु इन बातों को क्यों हमारे लिए अनुमति देता है। He's got a wonderful plan. और उनकी जो योजना है वह बहुत अद्भुत है। And he will do this
और वह इस कार्य को करेंगे because He has chosen us. क्योंकि उन्होंने हम सभी को चुना है। Yeah, praise God for this work and for this reminder, that God is doing, and we need to, endure whatever we are going through. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस कार्य के लिए, यह जो फिर से हमें एक और बार स्मरण दिलाया गया है।